this video is all about, I guess, medium questions of percentage, and in this video we will see some story lineup questions according to percentages. Okay, so let's start the video with our first question, and the first question is, if the height of Ramesh is less by 20% than Suresh. As I said, Ramesh and Suresh आ चुके हैं, story lineup शुरू हो गई है. The height of Suresh will be greater than that of Ramesh by how many percentage. ठीक है. अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा समझो, एज यू कैन सी अपन लोग किसी दो लोगों की शायद से हाइट को कंपेयर कर रहे हैं. What we are doing is the height of Suresh will be greater than that of Ramesh by how many percent. So what you are doing is you are comparing two values, and if we have to compare two values, अपन को पता है कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है. We have to apply trick 2. So इस क्वेश्चन में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आगे बहुत ज्यादा यूज आएगी, एंड दैट इज द पावर ऑफ अजम्पशंस. यस, द पावर ऑफ अजम्पशंस. As you can see in this question, there is no height of Ramesh given, no height of Suresh given. There is only given one thing, that is percentage. So what we're gonna do is we will assume the height of Suresh, and then after applying that percentage rule, we will get the height of Ramesh. So let's say Suresh height is 100. Yes, 100 units, 100 centimeter, 100 feet, whatever you want to assume, अपन कर सकते हैं assume. तो मैंने बोल दिया if the height of Ramesh is less by 20% than Suresh. So if the height of Suresh is 100, so the Ramesh height will be less than 20%. तो 20% अगर मैंने हटा दिया 100 में से, it will be 80, and the height of Ramesh will be 80. So what we're gonna do is, now we will solve the second part. The height of Suresh will be greater than that of Ramesh by how many percent. अब मेरे को ये बोला जा रहा है you have to compare your value with the height of Ramesh. Why? Because यहाँ पे Ramesh by how many percent. Now इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है? सुरेश के कितना बड़ा है उसकी वैल्यू से. मतलब the height of Suresh will be greater than that of Ramesh by how many percent. So let's calculate how many percentage. First of all, let's see how many values is greater than Ramesh, obviously. So I can see 20 यूनिट्स अगर मैं उसको मान के चलूं, कंसिडर करूं, तो मैं बोल सकता हूं 20 सेंटीमीटर सुरेश रमेश से बड़ा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यही निकालना है. द हाइट ऑफ सुरेश विल बी ग्रेटर than that of Ramesh by how many percent. So what you have to do, you have to calculate 20 is what percentage of 80. That's it. So 20 is what percentage of 80? Trick 2, 20 divided by 80 into 100. Whenever we have to compare two numbers, we use this trick, and the answer will be 25%. If you are not getting what is this trick, so let's say 20 is x percentage of 80. तो 20 अगर x परसेंटेज है तो 80 का x परसेंट निकाल लेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 20. अगेन द इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, 20 into 100 डिवाइडेड बाय 80, एंड दिस इज द सेम इक्वेशन दैट वी हैव फॉर्म्ड. तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बस यूज कर रहा था, ट्रिक 2 जो अपन ने परसेंटेज में पढ़ी थी. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सम स्टोरी लाइन अप क्वेश्चन. यू हैव टू जस्ट मेक एन इक्वेशन, और मेक एन इक्वेशन किस तरीके से तुम्हारे को निकालना पड़ेगा कि अपन किस वैल्यू को किससे कंपेयर कर रहे हैं. सो वी आर कंपेयरिंग द ग्रेटर वैल्यू, दैट सुरेश इज हाउ मेनी परसेंटेज ग्रेटर देन रमेश. तो पहले देख लिया कितना ग्रेटर है, और उसको मैंने सर्च कर लिया किसके अगेंस्ट, रमेश के अगेंस्ट. दैट्स इट. चलो अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज फ्रॉम 54500 टू 58,500 in 1 year. What is the percentage increase in the population? Now this is one of the greatest question, because यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि आपको हमेशा जब भी ये लिखा जाता है what is the percentage increase या फिर percentage decrease in the population, तो आपको कौन सी वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, समझना. Let's say this is first year and the year is 54500, year is 2022, और यहाँ पे आपको दिख रही है 54,500 पॉपुलेशन है. अब आया मेरा सेकंड ईयर, लेट्स से 2023, और यहाँ पे अब मेरी पॉपुलेशन हो गई है 58,500. सो आई कैन सी द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 4,000 people. That's it. 4,000 in the increase, and what I have to do is what is the percentage increase in the population. So I know the real value increase, that is 4,000. Now this is what percentage of which value, we have to calculate this value with 54500, because इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ है, 54500 से इंक्रीमेंट हुआ है. ये तो मेरी एंड वैल्यू है जिसमें इंक्रीज हो चुका है. तो कहाँ से इंक्रीमेंट हुआ था, 54500 से. तो अपने को परसेंटेज निकालने की जो 4000 हो 54500 का कितना परसेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ. तो सिंपली यहाँ पे फिर से मैं 4000 को कंपेयर कर रहा हूँ 5450 से, फिर मैं देख रहा हूँ 4000 कितना परसेंटेज है. तो अगेन द सेम फॉर्मूला विल अप्लाई, 4000 डिवाइडेड बाय 54500 into 100.
नाउ इफ यू सॉल्व दिस 545 डिवाइड बाय इतना, तो आंसर विल बी 5.34 कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली 5 इज 4000 हो ही जाता है, दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सम क्वेश्चंस. आई गेस तुम्हारे को समझ आ रहा होगा स्टोरी लाइनअप क्वेश्चन कैसे वर्क करते हैं. एंड दीज आर जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स. अगर आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, यू कैन रिपीट इट, यू कैन रिवाइंड इट फॉर एटलीस्ट 20-30 टाइम्स, देन यू विल गेट इट. ओके, तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पीछे जाओ थोड़ा सा टाइम में और सब समझ आने लगेगा. धीरे धीरे ही होता है ये सब. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. So our next question is, two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. Now this is a bit confusing question because अपने को क्या बोला गया? You again don't got any value of any student. तुम्हारे को बस पता है कि there are two students, बस वो examination देने गए. उसमें से एक के नंबर 9 मार्क्स ज्यादा थे दूसरे से. So this is the catch point. What we gonna do is, let's say this is my student 1 and this is my student 2. मैंने बोला स्टूडेंट 1 के मार्क्स x हैं, तो दूसरे के कितने हैं? 9 मार्क्स ज्यादा हैं x से. सो व्हाट आई विल डू इज x प्लस 9. तो मुझे दोनों के दोनों स्टूडेंट्स के नंबर सभी पता चल चुके हैं. अब मैंने क्या बोला? एंड हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. तो मुझे बोला क्या, जिस स्टूडेंट के 9 नंबर ज्यादा थे, इसके अकेले के नंबर पूरे के पूरे 56% है इन दोनों के सम से. तो पहले इन दोनों का सम निकाल देते हैं. तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? x प्लस 9, दैट इज 2x प्लस 9. सो व्हाट आई गेट इज कि ये जो 2x प्लस 9 है, ये है इसका टोटल सम. और ये जो स्टूडेंट था जिसने 9 मार्क्स सिक्योर करे थे, इसकी वैल्यू अगर मैं इस वाली वैल्यू से कंपेयर करूं, दैट इज 56%. दैट्स इट. तो मैंने बोला कि जो स्टूडेंट 2 है, उसकी जो वैल्यू या फिर उसके जो मार्क्स हैं वो 56% है दोनों के सम से. तो अच्छा एक बात बताओ, मुझे पता है इस सम का 56% क्या है, इसके स्टूडेंट्स के नंबर. तो क्यों ना मैं निकाल दूं उसका 56%. तो 2x प्लस 9 का मैं 56% कैसे निकाल सकता हूं? इनटू 56 डिवाइडेड बाय 100. दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन. ठीक है. और जैसे ही मैंने 56% निकाला, मुझे पता है वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 9. नाउ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द x वैल्यू विल बी इन योर हैंड. दैट्स इट. तो अगर x वैल्यू की बात करूं, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग, तो मेरे को पता है इसका आंसर क्या होने वाला है. x की वैल्यू आएगी 33. Now you got the student 1 marks 33. दूसरे के तो मुझे पता ही है, बस प्लस 9 करना है, that is 42. The answer will be B, 42 and 33. So this is how you solve some questions. तो काफी ज्यादा सिंपली बस मेरे को ये बोला गया स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 दोनों का सम. जो स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स 56% है उसके सम के, सम का 56% निकाला और आखिरी में स्टूडेंट 2 के नंबर रख दिए. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चंस. चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे. So our 10th question is, a fruit seller had some apples. He sells 40% and still has 420 apples originally he had. Interesting question. अपन को बोला गया a fruit seller had some apples. चलो ठीक है, उसने 40% एप्पल सेल कर दिए. सो लेट्स से फ्रूट सेलर हैज 100% ऑफ हिज एप्पल्स और 100% में से ही सेल्स 40% ऑफ हिज एप्पल्स. तो बचेंगे कितने? एग्जैक्टली 60% आर स्टिल लेफ्ट. सो दिस इज द हिडन इन्फॉर्मेशन. और ये हिडन इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, इट्स अ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो अपन आराम से निकाल सकते हैं. एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स. मतलब अपने को बोला गया 40% बेचने के बाद भी उसके पास कितने एप्पल्स बचे? 420 एप्पल्स बचे. तो मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से उसके पास x एप्पल्स थे, उसने y बेच दी, x इज 100%, ही सोल्ड 40% एंड स्टिल ही व्हाट ही हैज 420 एप्पल्स लेफ्ट. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 420 एप्पल्स. सो 60% इज रिप्रेजेंटिंग 420. आई गेस ये चीज समझ आ रही है. नाउ इफ 60% इज रिप्रेजेंटिंग 420, सो व्हाट इज द 100%? ओरिजिनली ही हैड कितने एप्पल्स थे उसके पास? तो बहुत सिंपली मैं बोल दूंगा, लेट द ओरिजिनल परसेंटेज बी x एंड x का मेरे को 60% पता है, तो मैं लिख दूंगा x इंटू 60 डिवाइड बाय 100 और उसकी वैल्यू ही पता है, दैट इज 420. तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इट विल बी x इज इक्वल्स टू 700. तो मुझे पता चल गया ओरिजिनली द फ्रूट सेलर हैज 700 एप्पल्स एंड आउट ऑफ दोस 700 एप्पल्स ही सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल्स, सो ही इज रिमेनिंग विद 60%, दैट इज 420. So if you know 60% of a value is 420, so you can easily get the 100% of that value, and that's how we do this question. I hope तुम्हारे को समझ आया. चल बढ़ते हैं आगे. 11th question is, 3 candidates contested an election and received 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? अब सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे के सारे वोट्स लिख लेता हूँ. 1136 ठीक है, 7636 ओके,
and 11628. Now these are the total votes. Okay, जितना भी ये पहले कैंडिडेट को मिले, सेकंड कैंडिडेट को और ये थर्ड कैंडिडेट को. Now the question is, what percentage of the total votes did the winning candidate get? तो सबसे पहले what I need is, I need total votes, then I need the votes of the winning candidate. So the total votes is, if you add these three numbers, the total votes will be 20,400. Yes, 20,400 are the total votes. और उसमें से अब मेरे को किसका परसेंटेज निकालना है? द विनिंग कैंडिडेट. सो ऑब्वियसली अपने इंडिया में तो यही चलता है, आई गेस हर जगह यही चलता होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, ही इज द विनिंग कैंडिडेट. सो 11,628 जिसको वोट्स मिले, ही इज द winning candidate. So what I have to calculate it, what is the percentage of 11,628 in respective to 20,400, because मुझे यही निकालना है, what is the percentage of this in respective to total. That's it. So I know I'm comparing this number with this number. Again, the trick 2 will be applied, and the trick 2 is 11,628 divided by 20,400 into 100, and this is how you solve this question. Now the answer to this question will be 57%. Yes, if you calculate this, it will be 57%. So आई गेस समझ आ रहा होगा, बार बार अपन नई नई ट्रिक्स का, कभी ट्रिक 3 का यूज कर रहे हैं, कभी ट्रिक 2 का यूज कर रहे हैं, फिर कभी ट्रिक 3 का यूज कर रहे हैं. अभी तक ट्रिक 4 एक बार भी यूज में नहीं आई है, बट देखना नेक्स्ट वाले पार्ट में जरूर आ जाएगी. चलो अपन आगे बढ़ते हैं. And the next question is, a man's wages were decreased by 50%. Again, the reduced wages were increased by 50%. He has a loss of. भैया I don't think he has a loss of anything. पहले 50% से डिक्रीज कर दी, फिर 50% से इंक्रीज कर दी. तो अब यहाँ पे मेरे को तो कोई ऐसा कोई खास लॉस दिख नहीं रहा. अब यहाँ पे तुम्हारे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कैच करनी है. देखो, let's say a man's wages is 100 rupees. What is his wages? 100 rupees. Now what the company did is, उसने बोला कि भाई हम आपकी wages को डिक्रीज कर रहे हैं 50% से. The man was sad. Obviously this is sad, क्योंकि आपकी भाई सैलरी कम हो रही है. तो अगर आप 100 रुपीज में 50% डिक्रीज कर देते हो, द वैल्यू यू गेट इज 50 रुपीज. ओके, सो डिक्रीमेंट कैसे करते हैं किसी वैल्यू में? 100 का 50% निकालना है, डिवाइड इनटू 50 डिवाइड बाय 100, सिंपल. तो आ जाएगा 50. आई गेस ये पता है, ठीक है. तो 100 में मैंने 50% डिक्रीज किया तो 50 रुपये बचे. अब भाई अब इंसान बड़ा सैड था, तो कंपनी ने बोला चलो एक काम करो, वी विल इंक्रीज इट बाय 50% अगेन. तो इंसान बहुत ज्यादा खुश हो गया. वो बोला कि चलो ठीक है भाई, आपने 50% से पहले डिक्रीज करी, नाउ यू आर इंक्रीजिंग विथ अगेन 50%, सो द वैल्यू मस्ट बी अगेन 100. नो, नाउ जो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 50 रुपीज पे हो रहा है. और अगर 50 रुपीज पे आप 150% निकालोगे, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग हाउ मच? 50%. तो 50 इज 100% ऑफ 100% ऑफ 50. सो व्हाट वी डू इज just add 50% to 100, and that is 50 into 150 by 100. You know what the value will be? The value will be 75 rupees. Now what happened here is, your original value you decreased 50%, the value becomes 50%. now you are increasing 50% and 50, so अगर आप 50 में 50% increase करते हो, the value comes out to be 75. so man had a loss of 25 rupees, and the loss is always calculated on basis of the initial salary. so his initial salary was 100 rupees और 25% का loss है 25 rupees का. so 25 is what percentage of 100? obviously 25%. so this is how you solve these questions. I guess तुम्हारे को समझ आ रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे पीछे चल रहा है. so परसेंटेज में कभी आप डिक्रीज ले रहे हो, फिर इंक्रीमेंट ले रहे हो, फिर डिक्रीमेंट कर रहे हो, द वैल्यूज विल बी डिफरेंट. नेवर इट कैन नेवर बी सेम, आई गेस. ठीक है, चलो अब अपन लोग भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, क्योंकि ये वाली वीडियो में तो अपन लोगों को इतने क्वेश्चंस करने थे. सो आई होप तुम्हारे को थोड़े बहुत क्वेश्चन समझ आए होंगे. मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.